Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 20, locomotion and movement. First of all, this chapter we will complete in the two parts. One is the musculatures, structure and functions of muscles, different types of movement, and the skeletal system, their structure, function and disorders. Okay. लोकोमोशन में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, जो कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन की, तो हम मस्कुलेचर्स बोल रहे हैं जिसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवमेंट. Movement is defined as the visible changes of position exhibited either by the whole organisms or any part of the body is termed as the movement. It is one of the important characteristics of living organisms. The movement of living things are autonomic, self-sustained, while the movement of non-living objects is induced due to the external forces. Both animal and plant exhibit wide ranges of movement. Movement of animals can be muscular or non-muscular. Plants show cellular and often organ movement, but not the movement of the organisms. But study of movement is called the kinesiology. Okay, the study of movement is called kinesiology. Types of movement. Three main types of movement exhibit by the cell of a human body. हम सेल से बात कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट इज द अमीबॉइड मूवमेंट, जिसको आप सूडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं. जैसे कि हमने फूड के इसमें पढ़ा था कि अमीबा अपना फूड करने के लिए फिंगर शेप्ड प्रोटोप्लाज्मिक एक्सपेंशन करता है, एक्सटेंशन करता है, जिससे उस मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, सूडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं. द साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक द माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द टाइप ऑफ दिस मूवमेंट. नेक्स्ट होता है सिलियरी मसल. सिलिया जो है कि अगर हम बात करते हैं, तीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वो एक कोऑर्डिनेट मैनर में इस तरह से अरेंज होते हैं, सक्सेशन कोऑर्डिनेट मैनर में. वो क्या करते हैं, मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और इस टाइप के मूवमेंट को आप सिलियरी मूवमेंट कहते हैं. और ये एक तरह का बेसिकली हम बात करते हैं, जो सिलियरी मूवमेंट है और सूडोपोडियल मूवमेंट है, वो नॉन मस्कुलर मूवमेंट होता है. देन इसके बाद आता है मस्कुलर मूवमेंट. मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड द मस्कुलर मूवमेंट. दिस आर brought about by the movement of microfilament packed within the muscles fibers. The contractile property of muscles is used effectively to bring about the movement. This type of movement is found in the majority of multicellular animals, including humans. Now let's understand locomotion. Locomotion आप किसे कहते हैं? It is a movement of an animal as a whole from one place to another. ठीक है, जिसमें organisms अपनी complete location change होती है. This is a voluntary movement that results in the change of place or location. It requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and the neural systems. Locomotion takes several forms such as the walking, running, flying, swimming, etc. Advantages की अगर हम बात करते हैं, तो we can move for the search food, shelter, mat, to escape from the enemies, and so many activities are here. ठीक है, जिसके लिए लोकोमोशन कंपलसरी होता है या जरूरी होता है. Methods of locomotion in animals vary with their habitats and the demands of situations. Muscles. These are made up of highly specialized, thin and elongated cell called muscle fibers. Muscles arise from the embryonic mesoderms. It makes about 40 to 50% of the human body weight. Special properties of muscles अगर हम बात करें, तो muscles exhibit various special properties. Some of them are given below: contractibility and excitability. The cells of muscles can be shortened considerably and return to the original relaxed state. Existability की अगर हम बात करते हैं, it is due to the energy stored in the electrical potential difference across the plasma membrane. मसल्स टिश्यू, और ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. वन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, myology. The study of muscles is called the myology. Human body has some 639 separate muscles that brings about the movement in majority of animals. ठीक है,
Muscle tissues is most abundant tissues of the most animals. The largest or biggest muscles in the human being is the gluteus maximus, जिसको आप हिप मसल्स कहते हैं, and the longest muscles is the sartorius, जिसको आप बैक मसल्स कहते हैं, and the strongest muscle is the masseter, जो कि जॉ मसल्स होती है. The longest smooth muscles is the rectus abdominis and the shortest muscle is the stapedial muscles. टाइप्स ऑफ मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो टू टाइप्स की बेसिकली, अगर हम थ्री टाइप बेसिकली हम देखते हैं. एक स्केलेटल मसल्स, एक होती है विसिरल मसल्स और एक होती है कार्डियक मसल, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है. स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, इट्स फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द skeleton of organisms under the microscope. They have very stripped appearance and here these are called striated muscles. They are also known as the voluntary muscles. जो skeletal muscles होती हैं वो voluntary muscles भी होती हैं. Their activities are under the voluntary controls of the nervous system. The major component of muscles is water, and potassium is the most abundant mineral element found in the muscles. They are primarily involved in locomotory actions and changes the body postures. देन सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, जिसको आप विसरल्स और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, दे आर फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ द होलो विसरल्स internal organs of body like alimentary canal, reproductive tract, etc. They do not exhibit any striation that is smooth in appearance and hence it is called the smooth muscles, non-striated muscles. They are also known as the involuntary muscles as they are not under the voluntary or direct control of the nervous system. They assist in the transportation of material and movement of food through the digestive tract. ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी होती है. कौन सी? स्मूथ मसल्स. थर्ड टाइप इज द कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो इट अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट एंड इन वॉल ऑफ लार्ज वेन्स, पल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर वेना के बारे में हमको ही मिलेंगे. एंड वेयर दिस वेन्स एंटर द हार्ट्स, these are straighted, involuntary in nature. Oblique hands and intercalated disc are their characteristic features. It assembles in the branching patterns to form the cardiac muscles and they never get fatigued. Two types of muscles fibers are found in the body, slow twitch और fast twitch. Slow twitch की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे muscles that required endurance और जो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट क्विकली हो जाती है उसको आप फास्ट ट्विच कहते हैं. हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज causes an increase in muscle mass while low intensity exercise, aerobic exercise build mass but not burn calories. Then different structure of the skeletal muscles. compositions की अगर हम बात करें तो basically यहाँ पे each muscles bundle contains a numbers of muscles fiber, muscle cells जिनको आप कहते हैं, ठीक है, bounded by the sarcolemma जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और जो कि वो एक वॉल कंटेन करती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती है. दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कैल्शियम स्टोरेज इन इट्स सर्कोप्लाज्मा जिसको आप साइटोप्लाज्म भी कहते हैं. मसल्स फाइबर्स इज अ सिस्टम as the sarcoplasm contains many nuclei. There are large number of parallelly arranged filaments called myofilaments or myofimbriae. मायोफिम्ब्रियाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर स्टडी करें मायोफिम्ब्रियाई की तो मायोफिम्ब्रियाई हैज एन ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स. जो डार्क बैंड है आप उनको ए बैंड कहते हैं जो कि एनिसोट्रोपिक बैंड्स भी आप कह सकते हैं इनको. एंड कंटेन्स प्रोटीन मायोसिन, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन होता है. और जो लाइट बैंड्स है जिनको आप आई बैंड कहते हैं क्योंकि ये आइसोट्रोपिक होते हैं, दैट्स वाई, और ये कंटेन करते हैं एक्टिन प्रोटीन. देन the striated appearance of the myofibrils is due to the distribution patterns of the protein actin and myosins. Both these proteins are arranged on the rod-like structure parallel to each other and also to longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner than the myosin filaments, hence are usually called the thin or thick filament respectively.
यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. Each eye band has its centers. A dark member is called Z line, एंड जो कि इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेड डिस्क और क्लोजस मेंबर और डबिस लाइन. The part of the myofibrils between two successive Z lines is called the sarcomers, functional unit of the contraction. ठीक है, sarcomers ये आप जब आप मसल्स कॉन्ट्रेक्शन पढ़ते हैं उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, ए और आई की, AI bands are arranged alternatively throughout the length of myofibrils. As at the center of A band, a portion is present that not overlapped by thin filament. It is called the H zone, जिसको आप Hansen zone भी कहते हैं. In resting state, the edge of thin filamentous on either sides of the thick filament partially overlap each other, leaving H zone in the center of the thick filament. Here we will discuss some contractile proteins. The thick myofilaments are formed by myosin protein. The thin myofilaments are formed by three types of protein, जिसको आप बोलते हैं actin, tropomyosins and troponin. These four proteins are collectively known as the contractile protein, which are responsible for the muscles contraction. Let me discuss about the actin. एक्टिन की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन विथ लो मॉलिकुलर वेट. इट इज मेड अप ऑफ 2F, दैट मीन्स फिलामेंटस एक्टिन हेलिकल्स फाउंड टू ईच अदर. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. Okay, then ट्राइपोमायोसिन की अगर हम बात करते हैं, ये 2 फिलामेंटस होते हैं. दिस प्रोटीन्स रन क्लोज टू द F एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ. इसकी लेंथ के साथ ही क्या होते हैं, ये कंटिन्यूशन में साथ में रहते हैं. देन थर्ड वन अगर हम बात करें, ट्रोपोनिन. इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑफ 3 ग्लोबुलर पेप्टाइड, जिसको आप ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन सी के नाम से जानते हैं. दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज रेगुलर इंटरवल ऑफ द ट्रोपोमायोसिन्स. ये यहाँ पे आपको एक्टिन की फिलामेंट्स दिख रहे हैं, इसमें ट्रोपोमायोसिन्स भी देख सकते हैं आप, ट्रोपोमायोसिन्स और एफ एक्टिन भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. इट इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द मसल्स फाइबर, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोसिन मास्क एंड एक्टिव साइट्स ऑफ द मायोसिन ऑन द एक्टिव फिलामेंट्स. मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन, let me discuss the mechanisms of muscle contraction here. The contraction of muscles is the best explained by the sliding filament theory. Sliding filament theory की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो बेसिकली जो यहाँ पर एक क्रॉस ब्रिज बनता है थिन और थिक फिलामेंट के बीच में, जो कि क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, जिससे कि रिड्यूस हो जाती है लेंथ किसकी, sarcomers की. This theory was proposed independently by the A.F. Hockley and the R. Nidgurk and by the H.E. Hoxley and Jean Manson in England in 1954. Basically अगर हम बात करते हैं, the sequence of event leading on to contractions is initiated by the signals of CNS either by the brain से voluntary activities control होगी, और by the spinal cord reflex activities control via motor neuron. The motor neuron along with the muscle fiber connected to it form a motor unit, and the action potential is conveyed to a motor end plate, जिसको बेसिकली हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं. द जंक्शंस बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सर्कोलीमा ऑफ द मसल्स फाइबर इज टर्म्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उसको आप मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं. इच मसल्स फाइबर. द न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करते हैं, ये जो होते हैं एसिटाइल कोलाइन होते हैं, इज रिलीज्ड एट द जंक्शंस बाय द न्यूरल सिग्नल्स व्हिच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कोलीमा. This spread and causes the release of calcium ion into sarcoplasm. सर्कोप्लाज्म जैसे जो साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे मसल्स के से जो सेल्स है उसकी जो साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर क्या होगा, सर्कोप्लाज्म जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम सिक्रीट होता है. किसकी वजह से, एसिटाइल कोलाइन जो अगर हम बात करते हैं, एसिटाइल कोलाइन जब रिलीज होगा वहाँ पे सिग्नल्स की वजह से, CNS की सिग्नल की वजह से, जो कि क्या करेगा, एक्टिव करेगा सर्कोलीमा का पोटेंशियल, और वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज करेगा. कैल्शियम जो है एक रेगुलेटरी की तरह रोल प्ले करता है फॉर द मसल्स कॉन्ट्रेक्शन. इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन लेवल हेल्प्स टू बाइंडिंग द
ट्रोपोनिन सब यूनिट, वो क्या करता है, ट्रोपोनिन सब यूनिट्स को बाइंड कर देता है जब कैल्शियम आयन इंक्रीज होता है, thus exposing the actin sites of F actin molecules. यहीं पर अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज की, तो एन एटीपी मॉलिक्यूल्स जॉइंस द एक्टिव साइट्स ऑन द मायोसिन हेड ऑफ मायोसिन माइक्रोफिलामेंट. These heads contain ATPase that along with कैल्शियम आयन्स एंड मैग्नीशियम आयन कैटेलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी. देखिए यहाँ पर एक एटीपी है, एटीपी का एक मॉलिक्यूल है जो कि मायोसिन एटीपेस की प्रेजेंस में और कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है. एडीपी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना और साथ में एनर्जी बन गई. द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द मायोसिन हेड विच एनर्जीज and straightens to the join an active site on actin myofilament which make the cross bridge. ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉस ब्रिज बन गया. ये एक्टिव फिलामेंट आप देख सकते हैं, ये मायोसिन फिलामेंट आपने देखा. ओके, यहाँ एटीपी एडीपी बना. ये जो आपने यहाँ से ये जो रिएक्शन देखी वो देखिए. Now the energies cross bridge moved, causing the attached actin filament to move towards the center of A band, and Z line is also pulled inward, causing shortening of the sarcomere, that is the contraction. It is clear for the above explained that during the contraction A band retain the length while I band get reduced. ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो A band जो होते हैं वो उनकी लेंथ रहती है, रिटर्न करते हैं, बट आई बैंड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. Then the myosin head release ADP and PI releases the its low energy. The head detached from the actin microfilament. ये कुछ इस तरह से ये फोल्ड होते हुए आगे बढ़ते हैं और जब ये रिलैक्स मोड में आते हैं तो वापस आ जाते हैं. जब स्ट्रेचेज होते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाके क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और जब स्ट्रेच होते हैं तो वापस इस तरह से आके ये कलेक्ट हो जाते हैं. The myosin end releases ADP and PI releases the to its low energy state. The head detached from actin myofilament when new ATP joins, cross bridge broken, and the repeating cycles. The free head claves the new ATP. The cycles of cross bridge formation and breakage of repeated causing further स्लाइडिंग. ये आपको एच जोन बताया, ये आई बैंड, ये जेड लाइन और जेड लाइन, ये ए बैंड और ये एच जोन हो गया. ए बैंड और आई बैंड के बीच में ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, ये रिलैक्स पोजीशन में इस तरह से रहेगा. देन मसल रिलैक्शन की अगर हम बात करते हैं, आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन द कैल्शियम आयन्स आर पंप्ड बैक टू द सर्कोप्लाज्मिक सिस्टीन. ठीक है, सर्कोप्लाज्मिक सिस्टीन में क्या होता है, वापिस क्या करेगा, कैल्शियम अपनी ओर एक्ट्रैक्ट कर लेगा. देन द ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन मायोफाइल, और जब यहाँ कैल्शियम कम हो जाएगा तो वापस क्या होगा, जो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी. एंड द जेड लाइन रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन. जो जेड लाइन है वो क्या हो जाएगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है. ओके, एंड इन दिस वे हम क्या कहते हैं कि ये रिलैक्सेशन के स्टेज में है. एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए. यहाँ पे आपको ये मायोसिन फिलामेंट बताए, ये एक्टिन फिलामेंट बताए, ये पी एडीपी बताए. एडीपी एंड पीआई रिटेन अटैच टू द मायोसिन हेड. ये यहाँ पे अटैच हुई तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना किसके, मायोसिन हेड और अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट. फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हियर. अब यहाँ पे स्लाइडिंग रोटेशन हो रहा है. ये एडीपी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे फॉस्फेट अटैच होगा. दैट पीआई और एडीपी रिलीज हुए यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करें कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है. देन ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ और वापस यहाँ पे रिलैक्सेशन के स्टेज में ये आ गया. और इस तरह से ये साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूशन में वर्क करेगी. रेड और व्हाइट मसल्स फाइबर्स की बात कर लेते हैं हम फटाफट से एक बार. यहाँ डिफरेंस है, दो टाइप के स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स होते हैं, रेड और व्हाइट मसल्स फाइबर्स. इनका अपना एक रोल होता है. दे आर डार्क रेड मसल्स फाइबर्स. कलर के बेसिस पे हम इनको कह रहे हैं. यहाँ पे एक डिफरेंस कलर का हो जाता है. यहाँ पे ये जो रेड कलर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मायोग्लोबिन की प्रेजेंस ज्यादा होती है. यहाँ पे मायोग्लोबिन कम होता है इन फाइबर्स, मसल्स फाइबर्स में. दैट्स व्हाई दे आर व्हाइट मसल्स फाइबर्स. माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर बट दे हैव लेस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है लेकिन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है. दे डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और ये एनोरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं. दे हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लॉन्ग पीरियड. दे हैव फास्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फॉर शॉर्ट पीरियड.
एक्सटेंशन मसल्स ऑफ द ह्यूमन बैक और आई बॉल मसल्स होती है वो वाइट मसल्स फाइबर्स होती है।